Hello students, welcome to Scholarship Success Hub. Today we are going to start chapter 1 and the name of the chapter is comprehension. As we are talking about the comprehension, in this chapter you may get different kinds of questions, whether it is depends on the noun, pronoun or any kind of parts of speech. With this question they test your intelligence. So let's start this chapter without touching more. So here's the first question. And the question 1 is, form a meaningful word from the letters L, P, O, C, M, Y, I and select the middle letter of this word. Whenever we are reading the question, first make sure that what is asked in the question. So here we know that the question is asking for to make a simple word and find its middle letter. So by looking at these letters, let us see what are the letters L, P, O, C, M, Y and I. These are the letters. So I assume that with the L the letter we can make a word laptop, but L and P is there, rest words are not there. If I am talking about the C, then I can make a word comply like C, O, M, P, L, Y, but it is also not looking a great thing. So finally we'll see other word as well with alphabet O. O, L, Y, M, P, I, C. I think this word is okay. The word is Olympic. All letters has been used and the middle of this word it is alphabet M. And yes, already we have in option alphabet M, that is the option number 2. So the answer of this question is option number 2. Now let's move towards the question number 2. Let's read the question. In the sentence, it started raining heavily when I left the office and walked to the station to catch a train to my house. How many words each of 7 letters are there? Now student, just we need to understand what does this question ask. It asks us to count the words having 7 letters. So let us count. First letter is there, it, not possible. Second word is here, started, started. So here first word having the 7 letter. Second word raining, it is also having the 7 letter. Third word heavily, heavily, heavily. So here also it is having 7 letters. So this one is the third word. Next, when I left the office and walked to the station. Here is also station, it is having the 7 letters. So this will be the fourth word. To catch a train to my house. So now as we can see here, we are getting 4 words having 7 letters. So the option is 2. It's the correct answer. Now let's move towards the next question. And the question 3 is, inside our garden we have made a nice and pretty little pool. How many words made up of 4 letters and 6 letters respectively? The same question is there as the previous question was there. What does it ask? Count the 4 letters and 6 letters words separately. So let's count them. Inside, how many letters are there? 6. So here is the first word if you are talking about inside. So here is the first word having the 6 letters. And next word
garden, it is also having the sixth letter. Next word, have, having the four letters. Made, having the four letters. Nice, having the four letters. Pretty, having the six letters. Little, having the six letters. So we'll make it easy to identify. Wherever I am making cross, that are the six letter words. Now pool is also having the four letters. So as we got the six letters words and the four letters word, so let us count. First we are going to count now six letters word. 1, 2, 3, 4. So six letters words are there, 4. And if you are talking about the four letter words, 1, 2, 3, 4. So if you are talking about both the words, then four letter words are 4 and six letter words are 4. So the answer is option number 3. Now let's move towards the next question. Here onward I will use somewhat Hindi, so that will be easy for the all students to get clear the concept. So here the question is, makes empty and noise vessel much. Form a meaningful proverb from the given words. Make a series of letters at the odd places in this sentence. Which is the letter at the fourth place from the left of this series? Now students, we should understand what does this question ask. First, we need to make a proverb and we need to pick up letter at the odd positions and we have to find the fourth letter. So first, this proverb has to be made first. So let's make a proverb. The proverb is, empty vessel makes, empty vessel makes much noise, and it starts with an empty vessel makes much noise. Now what the next thing, we already made then proverb. Now we should know that we should pick the letters at the odd positions. So I'll mark the letters with the odd positions. So let us see. First odd position, if you are talking about the odd position, then first is alphabet A, then E, P, Y, E, S, L, A, E, M, C, N, I, E. Now what next? We have to find a fourth letter. As from the starting we are find a fourth odd one. So first one is the A, second one is the E, third one is the P, and fourth one is the Y. So the answer is Y, option number 4. Now let's see the next question. Question number 5. In the word Amritsar, which letters occur at the places that correspond to the prime number? Now what does the question ask? वर्ड में जो लेटर्स प्राइम नंबर पोजीशन में है उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है. सो लेट अस लुक एट देम. अभी प्राइम नंबर पोजीशन मतलब क्या? प्राइम नंबर तो आपको सबको पता है कि जिनके सिर्फ दो ही डिवीज़र होते हैं. या तो वो नंबर खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है. ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं. ये सिंपल डेफिनेशन है. चलो आगे देखते हैं. अभी हमें अमृतसर वर्ड है अमृतसर. लेट्स राइट इट फर्स्ट. A M R I T S A R. Now what do they ask? Which letter occurs at the places that correspond to the prime number? Now let us see the prime number places alphabet. 2 is the prime number, so the second place alphabet is M. Along with that, third it is the R, then fifth it is the T,
and then seventh it is the A. If we are giving the numbers to this alphabet, look at this: 1 2 3 4 5 6 7 8. So we are counting the alphabet with this prime number position. So what are the prime number position alphabet? M, then R, then T, and then A. So the word that becomes MRTA, and if you are talking about it, then option 4 is our answer, MRTA. Let's take a next question. If the letters of the word productive are written in the reverse order, which letter will occur at the third place from the right end? Now अभी हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. तो अगर हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि वर्ड को उल्टा लिखना है और राइट से तीसरा लेटर कौन सा है ये हमें देखना है. तो चलो वर्ड को हम उल्टा लिखते हैं. तो जब हम वर्ड को उल्टा लिखेंगे तो पहला लेटर आएगा ई, उसके बाद आएगा वी आई टी सी यू डी ओ आर पी. सो इस तरीके से हमने वर्ड को उल्टा लिखा है. अभी आगे करना क्या है? राइट से तीसरा लेटर, राइट से तीसरा लेटर. देखो जब हम अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ई अल्फाबेट है ये लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें राइट से तीसरा लेटर पूछा है. तो राइट से पहला लेटर है पी, दूसरा लेटर है आर और तीसरा लेटर जो है वो है ओ. तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ द क्वेश्चन इज टी बी एल सी बी एल जी टी सी एल बी आर बी सी जी एल बी. In this series, which letter occurs the maximum number of times? अभी इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कौन सा लेटर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये लेटर्स गिनने पड़ेंगे पहले. सो लेट अस सी वन बाय वन. पहले हम काउंट करते हैं एक एक लेटर, उनको कट करते जाएंगे. ठीक है, चलो यहाँ पर हम देखते हैं पहला लेटर हमने देखा टी. चलो टी को गिनते हैं 1 2. टी कितनी बार आया? 2. अभी हम देखते हैं बी 1 2 3 4 5. चलो बी ये लेटर आया 5 टाइम्स. अभी हम देखते हैं लेटर एल 1 2 3 4. एल ये लेटर आया है 4 टाइम. चलो आगे वाला लेटर देखते हैं सी 1 2 3. अभी हम देखते हैं आगे वाला लेटर कौन सा बचा है? जी 1 और ये 2. और कोई लेटर बचा है? हाँ आर. तो आर जो है ये सिर्फ एक टाइम आया है. पूछा क्या गया है हमें? सबसे ज़्यादा बार आने वाला लेटर. अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार जो लेटर आया है वो है लेटर बी. कितनी बार आया है? 5 टाइम्स. सो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 1 बी. आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा. बेसिकली जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. यही एक सिंपल तरीका है. ज़्यादातर हम मिस्टेक करते हैं और मिस्टेक कहाँ पर होती है? काउंट करने में. तो जब भी हम काउंट करेंगे तो काउंट करते समय प्रॉपरली काउंट करना ज़रूरी है. इसीलिए कहते हैं कि ये आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्न, लर्न, 9, अंडर, फाइंड, रेंट, फनी, कनिंग. Which letters do occur 12 times and 5 times respectively in the group of words given above? Now students, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? लेटर्स गिनो, कौन सा 12 टाइम और कौन सा 5 टाइम आया है ये हमें बताना है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये सारे लेटर्स लिखने पड़ेंगे. बट अभी उसके लिए टाइम जाएगा तो हम क्या करेंगे? लेटर्स को लिखकर कट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो ऑप्शन में जो हमें लेटर्स दिए हैं हमें वही लेटर्स यहाँ पर देखने हैं. तो पहला हम देखेंगे अभी एन एन आर. ये पहला ऑप्शन हमें दिया है. हम एन को काउंट करते हैं पहले. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो लगभग एन ये लेटर आया है 12 टाइम.
अभी आगे वाला लेटर कौन सा दिया है पहले ऑप्शन में? आर। तो चलो हम आर को गिनते हैं कि आर कितनी बार आया है। तो आर के लिए ये पहला आर, दूसरा, तीसरा, 4 यहाँ पर। तो आर ये लेटर आया है 4 टाइम। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कौन सा लेटर 12 टाइम है और कौन सा लेटर 5 टाइम है। तो अभी आर तो नहीं है, तो आर के अलावा दूसरा लेटर अभी दूसरे ऑप्शन में देखते हैं हम। दूसरे ऑप्शन में कौन सा लेटर दिया है? ई और एन। एन तो 12 टाइम आ चुका है, अभी हमें देखना है ई। ई कितनी बार आया है। तो यहाँ पर काउंट करते हैं। ये पहला ई है। मोस्टली हम यहाँ पे भूल सकते हैं कि ई कैपिटल है, तो हमें लगता है कि हम जब काउंट करते हैं तो स्मॉल ई हम देखते जाते हैं और कैपिटल को भूल जाते हैं। कभी भी याद रखना, जो अल्फ़ाबेट दिया है वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, उसे देखना ज़रूरी है। तो पहला लेटर यहाँ पर ई, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड ई, उसके बाद थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो यहाँ पर ई कितनी बार आ चुका है? 5 टाइम्स। तो अभी हमें मिल गया है कि कौन से लेटर 12 टाइम है और कौन से लेटर 5 टाइम है। लेकिन जब हम देख रहे हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पर ई एंड एन तो दिया है, लेकिन जब हम इसको सर्च करने जाते हैं तो सर्च करते हुए हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है कि एन लेटर पहले है जो 12 टाइम है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन 2 को देखने जाए तो ई पहले आ चुका है, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर एन 12 टाइम है और ई 5 टाइम है, जो 12 टाइम्स और 5 टाइम रिस्पेक्टिवली मिलते हैं। इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। इन द वर्ड सुपरमैन, विच इज द लेटर एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ द लेटर ई। तो हमें देखना है कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो चलो देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन आस्क्स, द लेटर ई के राइट से थर्ड कौन सा है। लेटर ई के राइट से थर्ड कौन सा है, थर्ड लेटर हमें ढूंढना है। तो चलो पहले हम जब वर्ड लिखते हैं तो हम वर्ड लिख के ही लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा। SUPERMAN। तो जब हमने वर्ड देखा, हमें ढूंढना क्या है? विच इज द लेटर एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ द लेटर ई। ई के राइट साइड में, तो ये लेटर ई है, इसकी ये राइट साइड है, तो इसमें तीसरा लेटर ढूंढना है। तो इसके अंदर देखते हैं, फर्स्ट लेटर आर, सेकेंड एम और थर्ड ए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट। यहाँ पे कुछ हमें स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट ए, द हंग्री टाइगर soon got its prey. Option B, I cannot get through the examination this year. Statement C, wash the clothes properly to get out its stains. Statement D, it was an above get together of the old classmate. In which of the following options the correct meaning of group of words does not appear? अब जब हम देख रहे हैं कि इनके जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हर एक स्टेटमेंट का एक मीनिंग है। जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें ऑप्शन में क्या दिया है। देखो ऑप्शन में हमें पहला ऑप्शन दिया है गेट टुगेदर, इसका मीनिंग इन्होंने क्या दिया है? फोटोग्राफ। लेकिन जब हम ऑप्शन देख रहे हैं, स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज एन अबव गेट टुगेदर ऑफ ओल्ड क्लासमेट। तो ये गेट टुगेदर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे कि हम पहले स्टेटमेंट पे देखते हैं, द हंग्री टाइगर soon got its prey. The hungry tiger soon got its prey. तो यहाँ पर get का मतलब क्या है? तो कुछ ना कुछ मिलना है ना। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो get out इसका मतलब रिमूव करना ही होता है, किसी को निकालना होता है। got at जिसका मतलब है अटैक करना किसी के ऊपर। गेट थ्रू मतलब अभी यहाँ पे जैसे हमें एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस क्या दिया गया है? आई कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन दिस ईयर, है ना। तो गेट थ्रू का मतलब क्या है? पास बाय होना। तो ये भी, इसका भी मीनिंग सही है। तो अभी हमें करना क्या है कि इसके अंदर रॉन्ग मीनिंग ढूंढना था, तो रॉन्ग मीनिंग हमें मिल गया। रॉन्ग मीनिंग क्या है? गेट टुगेदर, इसका मीनिंग इन्होंने क्या दिया है? फोटोग्राफ। ये गलत मीनिंग है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यू टू हैवी रेन द belly ऑफ रिवर swelled beyond its limit. I enclosed the mouth of the bottle with a cork. He broke the eye of the coconut and took out the water inside it. Speak carefully.
द वॉल्स ऑल्सो हैव द ईयर्स। अभी क्वेश्चन पूछा गया है, देखो, इन विच ऑफ द अबव सेंटेंस द बॉडी ऑर्गन प्लेज इट्स ओन रोल। मतलब कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऑर्गन का रियल मीनिंग यूज हुआ है। तो जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर उन्होंने बोला है द बेली ऑफ रिवर स्वेल्ड बियॉन्ड इट्स लिमिट। एक्चुअली जब हम देखते हैं कि बेली का मतलब जब हम स्टमक के बारे में बोलते हैं तो स्टमक का काम क्या है, खाना पचाना, लेकिन यहाँ पर तो वैसा मीनिंग हमें दिख ही नहीं रहा है, इसलिए ये तो पहला सेंटेंस तो रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं, आई एनक्लोज द माउथ ऑफ द बोतल विद द कॉर्क। यस, द माउथ का काम क्या है, खाना, तो यहाँ पर तो वो भी मीनिंग नहीं दिख रहा है। थर्ड वर्ड क्या है, ही ब्रोक द आई ऑफ द कोकोनट एंड टुक आउट द वाटर इनसाइड इट। आइज का काम क्या होता है, देखना, बट हियर दैट ऑल्सो मीनिंग इज नॉट सेम। द लास्ट स्टेटमेंट, स्पीक केयरफुली द वॉल्स ऑल्सो हैव द ईयर्स। सो यहाँ पर ईयर का क्या है, सुनना, और इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ईयर का सेम जो वर्क है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है स्टेटमेंट 4, और स्टेटमेंट 4 हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी यहाँ पर हमें एक सीरीज ऑफ लेटर्स दिए गए हैं, PLATCWMYRKEI form a meaningful word from the letters at the places which correspond to the prime number. Which letters occurs at the middle place of this word? अभी सबसे जरूरी चीज क्या है, हमें क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइम नंबर वाले पोजीशंस के लेटर्स हमें वो लेने हैं और उससे एक वर्ड बनाना है, और उस वर्ड का मिडल लेटर हमें फाइंड करना है। चलो पहले प्राइम नंबर वाले लेटर्स तो गिनते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर हमें पता होना जरूरी है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, नेक्स्ट 5, 7, 11, 13। चलो हमें ये प्राइम नंबर्स तो मिल गए, आगे वाले देखेंगे हम। पहले अभी इस जो सीरीज ऑफ लेटर्स दिए हैं उसमें हम देखते हैं कि प्राइम नंबर वाले लेटर्स कौन से हैं। पहला आता है L, दूसरा आता है A, तीसरा आता है C, चौथा आता है M, और 11 नंबर का आता है E। आई होप अभी हमने ये लेटर्स तो लिख दिए। तो जब हमने ये लेटर्स लिख दिए हैं तो हमने उसी पोजीशन के हिसाब से लेटर्स लिखे हैं। देखो जब हम काउंट करेंगे तो 2 नंबर का लेटर है L, तो 2 के नीचे हमने L लिखा। 3 नंबर का लेटर है A, तो 3 के नीचे A लिखा। 5 नंबर का लेटर जो कि है C, तो उसको 5 के नीचे लिखा। 7 नंबर का लेटर है M, 11 नंबर का लेटर है E। यहाँ पर टोटल 12 ही लेटर्स है, इसलिए हम आगे वाले नंबर पर नहीं गए। अभी हमने जो वर्ड बनाया वो वर्ड बनता है लैक्मी। तो इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो मीनिंगफुल वर्ड कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें, इन लेटर्स को ध्यान से देखें, तो इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा जो है CAMEL। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टोटल लेटर्स से हमने जो मीनिंगफुल वर्ड बनाया वो वर्ड बनाया है कैमल। अभी कैमल में टोटल लेटर्स है 5, तो इसमें से हमें ढूंढना है मिडल लेटर। तो अगर मिडल लेटर हम देख रहे हैं तो हमें मिडल लेटर मिलेगा M। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि M ये ऑप्शन नंबर 4 में है, इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द लेटर्स GOVEFIR एंड सेलेक्ट द मिडल लेटर। अभी इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर एक लेटर बनाना है और उसका मिडल लेटर आइडेंटिफाई करना है। तो वर्ड कौन से दिए हैं हमें वो भी देखना जरूरी है। तो वर्ड दिए हैं GOVEFIR, ये अल्फाबेट हमें दिए हैं। इन्हीं अल्फाबेट का यूज करके हमें एक मीनिंगफुल लेटर बनाना है। तो पहले तो हम ये लेटर लिख लेते हैं। तो लेटर आते हैं GOVEFIR। अभी एक तो वर्ड जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है GOVERN, गवर्न, बट यहाँ पर लेटर N नहीं है, तो ये तो वर्ड नहीं हो सकता। तो दूसरा वर्ड जो बनेगा वो हम देखते हैं जो रेगुलर रूटीन में है, फॉरगिव। लेट अस सी, FORGIVE, फॉरगिव, ये वर्ड बन रहा है। कौन सा वर्ड बन रहा है, फॉरगिव। तो हमें वर्ड तो बन गया, लेटर कितने हैं टोटल, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है। तो यहाँ पर भी फॉरगिव के कितने लेटर्स हो रहे हैं, 7 ही लेटर्स हो रहे हैं। मतलब पूरे लेटर्स का यूज करके हमने एक वर्ड
बनाया है। अभी इसका मिडल लेटर हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी मिडल लेटर आइडेंटिफाई करना है तो हमें पता है कि टोटल लेटर 7 है, तो 7 का जब हम मिडल लेटर ढूंढेंगे तो एक चीज याद में रखना, कभी भी जब हम मिडल लेटर देखते हैं तो अगर 7 डिजिट टोटल 7 लेटर्स है तो लेफ्ट साइड 3, राइट साइड 3 और मिडल लेटर जो आएगा वो 4th नंबर का आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 और ये 4, तो 4 नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है? जी। सो जी वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा यही सही आंसर है। चलो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the word does not bear the similar meaning of the word help? अभी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो हेल्प का मीनिंग नहीं रखता, मतलब जिसको रीड करने से जिसको हमें पता चले कि इसका मीनिंग हेल्प जैसा नहीं है। तो चलो देखते हैं कि कौन सा वो वर्ड है। तो पहला वर्ड है गिव। गिव मतलब क्या होता है? किसी को कुछ ना कुछ देना, और एक ये हेल्प का ही एहसास दिलाता है। जब हम देखते हैं ना किसी को कुछ ना कुछ देते हैं, सो दैट मीन्स इन द सेंस वी हेल्प हिम हुएवर इट इज। दूसरा एड। एड का भी मीनिंग क्या है? हेल्प ही है। फॉर एग्जाम्पल हम जो बोलते हैं ना फर्स्ट एड, तो दैट इज ऑल्सो द हेल्प ओनली। असिस्ट। जब हम असिस्ट के बारे में देखते हैं तो कोई ना कोई असिस्ट करता है, किसी के ना किसी की मदद करता है, हेल्प करता है, तो ये भी सेंस हेल्प की तरह ही है। लेकिन चौथा वर्ड जब हम देख रहे हैं बैक। बैक का मतलब क्या? पीछे। तो ये एक वर्ड है जो हेल्प का मीनिंग बियर नहीं करता, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस रीड प्रॉपरली करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखना है, और उसके हिसाब से हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लेट अस रीड। हाउ मेनी वर्ड्स राइमिंग एज द वर्ड ओन इन द लिस्ट गिवन? अभी वर्ड्स कौन से हैं? ब्राउन, क्लाउन, फोन, ड्रोन, नोन, टाउन, शोन, क्राउन, डोन, स्टोन। अगर हम इन वर्ड्स को देखें तो इसके अंदर ये जो शोन दिया है, तो ये जो शोन दिया है ना, इसका स्पेलिंग गलत है, ये SHOWN है, शोन है। तो चलो देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड है जिनका राइमिंग होता है। तो यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड्स हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमें देखना है कि कौन से ऐसे वर्ड है जो इस OWN ओन से राइम करते हैं। तो ओन से जो राइम करने वाले वर्ड्स हमें देखने हैं, तो चलो हम वही वर्ड्स देखते हैं कि ओन से कौन से वर्ड्स राइम करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो वर्ड है हम देखने जा रहे हैं, तो ब्राउन ये नहीं करेगा, क्लाउन ये भी वर्ड नहीं करेगा, फोन हाँ हो रहा है, तो पहला वर्ड हमें मिल गया फोन, ये राइम करेगा OWN से, फोन। दूसरा ड्राउन ये नहीं करेगा। अभी वर्ड देखो KNOWN, नोन, नोन, तो इसका मतलब ये भी राइम करेगा। नेक्स्ट वर्ड है टाउन, बट अ टाउन इट डजंट मैच विद द exact OWN, own. The next word is there shown. Obviously the shown word also it matches, it rhymes with the word OWN, so we got the second word. Now next, if you are talking about after phone, shown, the next word is there crown. Really? No, the crown word also it will not be there. And down, it is also not there. But the stone, yes, obviously the stone word is also there. So here we get the word first phone, then known, then shown, and then stone, which rhymes with the word OWN, own. So obviously we have 4 words that matches this criteria. So यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखने जा रहे हैं तो ऑप्शन 1 जिसमें हमें 4 वर्ड्स दिए हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। द चीयरफुल आर्टिस्ट पेंटेड अ वाइब्रेंट सनसेट ऑन द पीसफुल बीच। In the given sentence, by how much the number of adjectives greater or lesser than the number of nouns? Now students,
हमें इसके अंदर ढूंढना क्या है, पहले तो हमें ढूंढना है इसके अंदर की एडजेक्टिव कौन से है और इसके अलावा नाउन्स कौन से हैं। तो चलो हम देखते हैं कि हमें पहले पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है और नाउन क्या है। अगर हम नाउन देखने जाते हैं तो किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का, या किसी भी एक सब्जेक्ट का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और एडजेक्टिव क्या होता है, वो नाउन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, द चीयरफुल आर्टिस्ट। तो पहला हमें नाउन मिल गया आर्टिस्ट, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं नाउन, और यहाँ पर लिखते हैं एडजेक्टिव। तो नाउन एक मिला हमें, और चीयरफुल, आर्टिस्ट कैसा है, चीयरफुल है, तो जो आर्टिस्ट के बारे में बता रहा है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो एक एडजेक्टिव भी मिल गया, चीयरफुल आर्टिस्ट। पेंटेड अ वाइब्रेंट सनसेट, वाइब्रेंट सनसेट, सनसेट क्या है, एक नाउन है, और कैसा सनसेट है, वाइब्रेंट, तो वाइब्रेंट भी एक क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ पर दूसरा एडजेक्टिव और नाउन भी मिल गया। आगे देखते हैं हम, ऑन द पीसफुल बीच, पीसफुल बीच, बीच क्या है, एक नाउन है, एक जगह का नाम है ना, तो तीसरा नाउन भी मिल गया। लेकिन ये बीच कैसा है, पीसफुल है ना। तो पीसफुल किसके बारे में बता रहा है, बीच के बारे में बता रहा है, यानी कि नाउन के बारे में बता रहा है। तो इसीलिए हमें और एक एडजेक्टिव भी मिल गया। तो जब हमने ये सेंटेंस देखा तो इस सेंटेंस के अंदर हमें 3 नाउन मिले और 3 एडजेक्टिव मिले। मतलब नाउन और एडजेक्टिव अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो ये दोनों कैसे, इक्वल है। तो इसके लिए हमें जब ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन 1 में ग्रेटर बाय 2, ऑप्शन 2 लेसर बाय 1 और ऑप्शन 3 इक्वल, चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3।